फिर इसका एक बहुत बड़ा नो इसका एक एलाबोरेशन है, हंगर एलिवेशन एम्बिशन टू डेवलप इंडिया। ओके, सो ये शुरू हुआ था जैन 2020 का। वेबसाइट भी है, अगर आप जाके देख सकते हो। तो आर मिशन इज टू जस्ट नो आर मिशन इज टू फाइट अगेंस्ट हंगर। वी फाइट अगेंस्ट हंगर, yeah. We enable youth to earn their meals by themselves, fight against hunger. There are two ways to fight against hunger. One is we find the people, those who don't have the potential, like the old age people, the people old age people, or the young, very young people, those who don't have the potential to go out and earn. For them, we'll be going to their places and we'll be serving the food to them. And then the people who do have the potential, who have lost their jobs, for them we will be helping in getting we'll be helping with the free courses, and no, we'll be helping them earn their meal by themselves. Yeah. So the basic agenda of the organization is to earn the make the youth to earn their meals by themselves. Yeah. So as I mentioned, we have three agendas. One is platform where we have three agendas in our organization. One is we provide free courses. We offer free courses to the learners who have lost their jobs, so that we can place them into a some organization to earn their meals with themselves. Yeah. Another is we go to slum areas, and also the rural areas, orphanages and hospitals. We serve them food like we do over here. Yeah. Then another way is we spread awareness about hunger. Yeah, how important the food is, how how to give value to it, how to how to save the food without getting it wasted. So we'll conduct the seminars and the classes like this. Okay. So before getting started with our actual agenda of the webinar today, people are here, and the people who are here, I would like to know about them. तो आपको बस थ्री क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा। बस ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा। आपका जो डेजिग्नेशन है आप उसके बारे में बताओगे। फिर नो सेकंड, आपका जो डेजिग्नेशन है, आप क्या करते हो, आपके बारे में बताओगे, और आपका जो इनिशिएटिव है आप उसके बारे में बताओगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर नो नो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ईच अदर, देन वी कैन गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल एजेंडा ऑफ द वेबिनार। Okay. Anybody going? Okay. Shall I go? यस प्लीज सर। All right. My name is Gagan, and I am essentially a marketer. I have led organization, and now I'm in a personal consulting role. I initiative-wise, I have worked with one of the startups, which was to provide medical assistance, in the rural India through a telemedicine process when it wasn't legal. So we did the testing, all went pretty well, but since it wasn't the legality piece wasn't clear. I mean, the government said, no, you're doing a good job, but we don't have a clear cut. The All India Medical Institute, they said we don't have a clearance, and that clearance came in, I think, post COVID, when the government with the Ayush said that telemedicine is legal in India. So that's one project that I did within the NGO spectrum. And but what I was interested was to see what's happening, because it just said something, I think, for the NGOs. I'm always interested to see the rural markets, from the urban market. I've done a lot of talks on the rural market, how to make it sustainable, models, so that the rural markets also get the kind of advantage that the urban gets. So that's my intro. So you're from Mumbai. Mumbai. Oh, nice. And you are How a about yourself? marketer. Essentially, I mean, I've studied marketing and I help brands. So yeah, I don't know what to call myself. Okay, I think I should learn from you. We'll learn from each other here. Yeah. That was also one of my agendas, to see and learn and help if you need any help. And I do help a lot of NGOs in terms of my knowledge and stuff. Thank you so much for joining, sir. Okay, Gagan. Pass it to someone. Anybody else?
You can just take any on. I will just. No, you can Oh, just take any on name and. Aksha. Aksha, would you like to go next? Akshay. Akshay. Akshay Oh, Kamath. okay. The Y is that. Okay. Yes. Or maybe Lakshman. Yeah, Akshay or Lakshman. आप में से कोई एक बात Hello, कर can you hear me? सकते. Yes, I can hear you. Loud and clear. Akshay. Yeah, my name is Akshay Kamath. I'm from Pune. Okay. I'm working for organization Little for Little Foundation. Okay. For little. Okay. तो मैं वहाँ पे ट्रेजरर हूँ. Okay. तो करंटली हम लोग जो काम करते हैं एक्चुअली जो पब्लिक स्कूल्स है या मतलब जो छोटे बच्चों के रिलेटेड एजुकेशन अवेयरनेस नरिशमेंट इसके मतलब ये फील्ड में हम लोग काम करते हैं. अभी लास्ट 2 मंथ के पहले हम लोगों ने जो काम किया संपर्क एजुकेशन सोसाइटी है मुळशी में. तो उनके लिए वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम था. तो हम लोगों ने वहाँ पे नेटवर्क बूस्टर लगाया वहाँ पे. तो वहाँ का अभी नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. उसके लिए हम लोगों ने 90,000 से अराउंड 1 लाख तक हम लोगों ने रेज किया था. एक्चुअली अभी 1 साल ही हो गया ना हमारा एनजीओ को. तो हमको रेस करने का उतना फंड रेस करने का उतना नॉलेज नहीं है. तो इसलिए एक दूसरा और एक एनजीओ था तो उनके मदद से हम लोगों ने रेस किया. अभी जो करंटली हम लोग काम कर रहे हैं तो स्पेशल चिल्ड्रन है. तो अनिकेत सेवाभावी संस्था करके है. तो नियरली 75 स्टूडेंट्स है स्पेशल चिल्ड्रन सब. तो एक CSR से मिल के हम लोगों ने वहाँ पे 12 मंथ्स का राशन हम लोगों ने अरेंज किया उनके लिए. मतलब 300 kg चावल और 300 kg गेहूँ ये सब. तो अभी वो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए वहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल कंस्ट्रक्ट करना है. तो करेक्ट. तो उनको है ना जो अनिकेत सेवाभावी संस्था है ना उनको लैंड मिला है डोनर से. तो और एक बिल्डर ने उनको जो फाउंडेशन है मतलब जो कंस्ट्रक्शन है फाउंडेशन का तो वो करके दिया है उनको. अभी हमको फंड रेज करना है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए. वी आर वर्किंग विद अनिकेत सेवाभावी संस्था करंटली. तो एक्चुअली हमारा विजन और एम यही है कि अवेयरनेस एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करना. मतलब जो भी पेरेंट्स है उनको ही करना पड़ेगा ना अवेयरनेस. अगर वो छोटे बच्चों को नहीं भेज रहे लेबर क्लास वारजे में पुणे वारजे में जो भी लेबर क्लास लोग है तो वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं भेजते स्कूल में. तो जो भी लोगों के साथ प्रोफेसर लोगों के साथ मिलके अवेयरनेस क्रिएट करना और नरिशमेंट ये हम लोग काम करते हैं अभी. Really great job, Akshay. One of the तो अभी important ये सेमिनार thing that you're doing. हाँ. तो ये सेमिनार ज्वाइन करने का मेरा मकसद ये है कि मतलब अभी जो स्कूल हम लोग रेसिडेंशियल स्कूल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ना तो उसके लिए जो फंडिंग लगने वाला है तो मेरे को लगता है CSR भी है लोग. तो जो भी हम लोग सोशल मीडिया है ना तो इसके थ्रू हम लोग मतलब लोगों को बोल सकते हैं. हम लोगों ने तो इनिशिएट किया है. तो आप प्लीज हम लोगों को ज्वाइन करके हम लोग सब मिलके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्कूल. Hope this webinar will help you, Akshay. Thank you for joining. आप किसी और को पास करो. प्रियेश और आरती दोनों हैं. यस सर, मैं प्रियेश, मैं रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़. Okay. और सर मैं अपना ट्यूशन क्लास चलाता हूँ ऑनलाइन, Okay. जिसका मेरा मकसद है कि जो भी बच्चे हैं जो मतलब ट्यूशन नहीं जा सकते हैं या फिर जा भी सकते हैं, जो नहीं जा सकते हैं उनको मैं ज़्यादा प्रॉफिट देना चाहूँगा और जो जाते हैं उनको मैं ऐसा बनाना चाहूँगा कि वो घर पे ही रह के पढ़ लें. तो यही मेरा मकसद है इसको ओपन करने का कि मैं ट्यूशन फ्री इंडिया बनाना चाहता हूँ. Heads off प्रियेश. यस सर. Out of the box. Okay. So आपने इसके लिए आपने कोई नाम सोचा है इस इनिशिएटिव सर इसके लिए मैंने विद्या एकेडमी करके यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया है. उसमें मैं मैथमेटिक्स अभी पढ़ा रहा हूँ. Okay. जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है. Great. Yes, Yes, thank you. So Welcome. Mumbai, Pune, and छत्तीसगढ़. Chhattisgarh. यस सर. Last but not least, Aarti. Aarti ma'am, you are here. It might be a network issue or
Okay. If everyone are okay, shall I go with my intro or? Sure, sure. Okay. Yeah. Shall I ask just one question? Is Yes, it all please. right for everybody to have the videos on? I mean, so at least we can see Yes. हाँ, even on the face screen. and the name. चलो, चलो बढ़िया. At Okay, so thank you everyone for turning on your videos. So guys, तो मेरा नाम शाहिद है, शाहिद आफरीद. So we have started this Hadi organization. एंड मैंने एजेंडा तो आपको बता दिया है. मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर सीईओ हूँ. जो हाँ, वी स्टार्टेड 6 members started this organization. And no, we started serving the people, and we discovered what exactly our mission is. Only 6 of us were there then. No, we formed the team of 20 staffs. Now we have a few, team of 8 board members and 20 staffs, and around 700 volunteers. And yes, every month we keep on increasing our objectives. We keep on focusing what extra we can do. Yes, it's always no, as I mentioned in every no, in my every webinar, that it's always learning and implementing. Yeah. So yes, as mentioned, I'm from Bangalore. Yeah, let's get started. भाई आपको सभी लोगों को अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी? अभी तो नहीं दिख रही है सर. Okay, I just share my screen. Okay. अभी शुरू हुआ. हाँ. So guys, before getting started, before moving forward, I would like to ask. देखिए, तो मैं सारे डिजिटल मार्केटिंग के मीडियाज़ के बारे में तो मैं सब कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 45 मिनट्स हैं. तो इस टाइम में अगर मैं सारे डिजिटल मार्केटिंग के पॉसिबिलिटीज़ बोलूँगा तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा. तो मैं बस थोड़े से एजेंडास, थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स और थोड़े से पॉइंट्स के ऊपर ग्लांस करूँगा, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया मिले कि इसे क्या क्या कर सकते हैं. और अगर ओके रहा तो सारे एनजीओस के लिए आई वुड लाइक टू ऑर्गेनाइज अ कोर्स ऑल्सो फॉर द entire India. Whoever NGOs are there will organize a course also, if everyone are okay with that. Yeah. और इसके पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप कौन सा ऐसा मीडिया है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिल जाएंगे, मतलब डोनर्स मिल जाएंगे या फिर? हाँ, Donors, Facebook, ओके. फेसबुक, ग्रेट. Instagram, ऑसम. फेसबुक, LinkedIn. लिंक्डइन. ओके. लिंक्डइन पे CSR. हाँ, ये किसने बोला ये लिंक्डइन पे CSR? अक्षय. ये अच्छा. अक्षय. आई थिंक प्रॉपरली आप टारगेटेड हो के प्लेटफॉर्म कौन सा किसके लिए यूज करना है, राइट? Okay, as I mentioned, as Gagan said, yes, it is Facebook, one of the biggest, I believe social media, जहाँ पे आपको वाइड नंबर ऑफ ऑडियंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको वॉलंटियर्स हो. कहीं पे बैकग्राउंड नॉइस. हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस सोशल मीडिया से, जब बस इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं. ओके, एक तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, ये तो मैं बता दूंगा आपको कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प एनजीओ. फर्स्ट पार्ट, हाउ टू रीच द डोनर्स, हाउ टू टारगेट द ऑडियंस, प्लेटफॉर्म्स टू डिसाइड फॉर व्हाट थिंग्स, टू डिसाइड कौन सी चीज़ों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आपको डिसाइड करना है, मैं आपको ये बता दूंगा. जैसे अभी अक्षय ने बताया CSR के लिए लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो, ये बेहतर चीज़ बताई इन्होंने. यस, CSR के लिए लिंक्डइन बेहतर प्लेटफॉर्म रहेगा. ओके. और सेटअप के और टूल्स सेटअप के लिए, हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि दिस इज फॉर द स्टार्टअप एनजीओस. दिस टूल्स विल रियली हेल्प देम आउट. या, and the things we can do from here, getting volunteers, reaching to the donors, promoting events, hiring staffs and interns, spreading awareness. Hope everyone in this group knows how to create a Facebook page. Yes sir. Actually, I think I don't have to ask to Gagan. Gagan already has lots of Facebook pages and groups, I believe. Yeah. जी, हाँ. काफी है.
Yeah. So, guys, few very important parts to discuss. Whenever you create a page, Facebook page, deciding a proper audience is really very important. I think Aarti Panaj- yeah. I'm from Pune. Sorry, Aarti has shared now. I'm from Pune. My organization is Mahila Shakti Succeed. Prashastan. Works in works in women Work empowerment. in Okay. women empowerment. From Nice. COVID-19 working for hunger, working in hunger. Working in hunger. Is that Hunger Project? Hunger Project, Race Against Hunger, or Akshaya Patra? Which? Okay. Yes, yes. Okay. Nice. All right. I'm getting inspired. Okay. So guys, whoever don't have the Facebook page, please create a Facebook page for your initiatives and your organizations, because I believe if you have a Facebook page, you don't need your website also to get the leads, to get the volunteers. Also NGO Yeah. consultant. Okay. Very nice. I'll get in touch with you after this meeting, I think. Yeah. If you are an NGO consultant. Okay. So, no, creating a Facebook page. If you have started your initiative, if you have started your NGO, no, if you don't have the website, if you have a Facebook page, I think that's more than enough. More than enough. Believe me, that's more than enough. Why? One biggest advantage is for getting a leads. As I was जैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, फेसबुक पे आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, वहाँ से मुझे आपके लीड्स मिले, फिर मैंने तो मुझे वेबसाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे। ओके, आई डिड नॉट, मुझे वेबसाइट की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे बस फेसबुक पे एक ऐड रन करना था, जिसकी वजह से मुझे लीड्स मिल गए और मैंने आप लोगों को मीटिंग में इनवाइट किया, तो वेबसाइट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी वहाँ पे। सो इफ़ यू हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज फेसबुक पेज एंड इफ़ यू नो हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, हाउ टू रन द एड्स, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, होप एवरीवन हैज़ द फेसबुक पेज। Yes, yes, we are. जी, जिनके पास फेसबुक पेज नहीं है, जस्ट लॉग इन टू योर फेसबुक एंड फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट योर फेसबुक पेज एंड फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट your groups for your NGOs or for your initiatives. Yeah, those who already have the pages, they can view their pages from here. Facebook has made lots of changes now in audience. So guys, before moving forward, I'd like to ask, what do you think? Okay, Mahila Shakti Samhita. Okay, so guys, before moving forward, I would like to ask, what do you think? How can you get the volunteers from Facebook? Content, Content, okay. ads, Content, ads, okay. Akshay, what do you say? वर्क, जो भी फ्यूचर का वर्क है, करंट Okay. वर्क शोकेस करके हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। Join कर सकते हैं, Volunteer, great. correct. Gagan, any other suggestions from which we can get the volunteers? um, they are Conversion ads. offline. You could do offline or online. Online. I'm completely on Okay, Facebook. entire online. So one very specific would be if you can segment on any channel that gives you people related to NGO, people following NGO, collaborations with NGOs, Correct. doing their webinars, driving inward traffic. Collaboration will help you. People who are in has this interest in this matter, वो फिर आपको आपके साथ कोलैबोरेट करना मतलब चाहेंगे काइंड ऑफ थिंग। आपकी अपनी विजन, आपकी अपनी स्टोरी, आपने क्या किया है, आपका जेन्युइननेस, जहाँ पर मेन इसमें काफी होता है कि हमने ऐसे ऐसे किया है और हमें ये चाहते हैं और हमारा ये है, तो अगर आपको भी करना है तो प्लीज ज्वाइन करिए। तो वो स्टोरी में भी काफी एक स्टोरी में आता है। अट्रैक्शन आता है कि मतलब जिसको हम लोग ब्रांडिंग कहते हैं कि फील किसी को करवाना कि ये हमारी कहानी है और ये हम करना चाहते हैं, मगर हमारे पास ये कम है, तो पीपल विल सिंपथाइज एंड बोलेंगे नहीं नहीं आओ प्लीज, हम करेंगे आपको हेल्प। वैसा ये हो गया। उसके बाद आप रेगुलर
हाँ, you could capture information, but वो अगर वेबसाइट नहीं है तो you could use activations. You could perhaps make a nice video film and see if it can go viral. तो मेरे ख्याल से Okay. तरीके तो बहुत सारे हैं, एंड बट इसमें सब ट्राई करना है, कोई गारंटी नहीं है कि ये सारे के सारे कोई काम करेंगे। इसमें एक हाँ। आधा जो है वो क्लिक करता है, उसके बाद आपको कंटिन्यूअस काम है, बस जी ऐसे करते जाइए। समझ गया, थैंक और यू। बेस्ट होता है ये भी पीआर एक्टिविटी, वो भी एक है ऑफलाइन में अगर जाना चाहते हो तो अभी ऑनलाइन में भी आप कर सकते हो उसको। आर्टिकल डाल दिए, अच्छी सी एक स्टोरी, यू नो, वेयर पीपल विल रीड एंड गेट इंस्पायर्ड टू जॉइन। तो हैं तो बहुत सारे तरीके। गाइस एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। देखिए फेसबुक पे अगर आपका पेज है, अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, देखिए, और जो कैटेगरीज आप लोग पेजेस सेलेक्ट करने की, जो कैटेगरीज आप सेलेक्ट करते हो, ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है चैरिटी चैरिटेबल, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। हाँ, तो कैटेगरीज जो आप सेलेक्ट करते हो, देखिए तीन तीन आज कैटेगरीज, आप कोई भी आप फेसबुक पेज बना लो तो मैक्सिमम आप 3 कैटेगरीज चूज कर सकते हो। एक तो यहाँ पे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके साथ साथ आप दूसरे भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो इंडिया के बाहर जो एनजीओस हैं उनको अगर पता चलना हो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ जैसे 2-3 कैटेगरीज डालते हैं तो बेहतर रहेगा। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, जैसे फेसबुक पे आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, फेसबुक पे आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब कुछ सारी चीज़ें हम लोगों ने पोस्ट की हुई है, जितने भी हम लोगों ने काम किया सब कुछ हमने पोस्ट किया हुआ है। ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, जो कुछ भी ग्रुप्स आप देख रहे हो, जैसे हंगर प्रोजेक्ट के ग्रुप हुए, जैसे एनजीओस के ग्रुप्स हुए, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के ऊपर आप ज्वाइन कीजिए। ग्रुप्स में ज्वाइन करने के बाद शेयर करने के आपको 2 तरीके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये तो आप नोट कर लीजिए। ग्रुप्स में कोई भी ग्रुप्स हो, एनजीओ, कोई बैकग्राउंड नॉइस है भाई, ओके। देखिए ग्रुप्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं, कि मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने ज्वाइन किया, ग्रुप्स में ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छा एडवांटेज है कि 2 तरीके हैं इसमें शेयर करने के। एक, आप जब कभी आप ग्रुप पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आप यू ज्वाइनिंग एज योर प्रोफाइल, आप प्रोफाइल इंडिविजुअल प्रोफाइल के साथ आप ज्वाइन करोगे, या फिर आप अपने एनजीओ के जो पेज है आपका उस प्रोफाइल के साथ आप ज्वाइन करोगे, यहाँ पे दिखा देगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस ग्रुप ने मुझे अलाउ किया हुआ है कि एक तो मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल से ज्वाइन कर सकता हूँ, दूसरा ओके ऑर्गेनाइजेशन का जो पेज है यहाँ से मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ओके लोगों को पता नहीं चलेगा कि किसने पोस्ट किया है, पर ये पता चलेगा कि इस एनजीओ ने, किस इनिशिएटिव ने पोस्ट किया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि हालांकि उनका प्रोफाइल पेज हम लोगों ने अलाउ किया होता है ग्रुप पे कि वो एनजीओ के पेज से कर सकते हैं, पर भी वो इंडिविजुअली करते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने उसमें एनजीओ की तरफ से मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है वहाँ पे। नाउ व्हेनेवर आई गो टू माय ऑर्गेनाइजेशंस पेज, it's a bit slow. Whenever I go to my organization's page, whenever I have to share something, it will give me the option to share individual or share from the page. See this one. जब कभी भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, अभी शेयर टू ग्रुप, मुझे ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। देखिए, एक तो मैं इंडिविजुअल प्रोफाइल से कर सकता हूँ, दूसरा एनजीओ के प्रोफाइल से। जब कभी भी मैं एनजीओ के प्रोफाइल से करूँगा ना, इफ पीपल लाइक इट, it will give the credit to my page, not to individual to me, it's for entire organization, right? So yes, I think this is a good practice that you should do. Always make a habit that you will post it, you will share it from your NGO's profile. दिस इज़ वन थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीचेस मिलेंगे। पहले जब कभी भी आप एनजीओ का पेज या फिर कुछ भी आप ओपन करोगे, हमारा भी नया एनजीओ है तो मैंने ये चीज़ें अपनाई है, तो मुझे बहुत यूज़फुल हुआ है, इसीलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप अपना पेज बना रहे हो, लाइक्स और कमेंट्स के पीछे मत भागो। रिचेस, ओके, रिचेस कितने लोगों तक आप पहुँच सकते हो, ये इम्पोर्टेंटली आप माइंड में रख लो, ताकि जितने लोगों तक पहुँचोगे उतने ज़्यादा आपको एंगेजमेंट्स आना भी शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, ओके। आप अगर पेज अगर आप बना रहे हो, ओके, पेज में आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ मिलेगा, यहाँ पे इनसाइट्स, आपको सभी को दिख रहा है अभी इनसाइट्स यहाँ पे? जी हाँ हाँ। हाँ, इनसाइट्स पे आप क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका कौन सा पोस्ट
कितने लोग, कितने ऑडियंस तक पहुंचा है, कौन से पोस्ट में ज़्यादा एंगेजमेंट्स आए हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। गुड इंटरनेट बट वाई। हाँ, तो आपको ये बता देगा कि आपके पेजेस के लाइक्स कितने आए हैं, पिछले एक हफ्ते में कितने लाइक्स आए हैं, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लोगों तक आप रीच कर पाए हो। ये सब कुछ आपको बता देगा। ये बहुत अच्छा डैशबोर्ड है अगर आप ओवरव्यू में आ रहे हो, इनसाइट्स में आ रहे हो तो। बताना ये नहीं है, ये डैशबोर्ड तो आपको हर कहीं मिल जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है, ये वाला नीचे जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ना, ये सभी लोगों को पोस्ट वाइज। हाँ, पोस्ट वाइड। और ये वाला दिख रहा है आपको, पेजेस टू वॉच, सभी लोगों को दिख रहा है ये। रिकमेंडेशन में हाँ, ये पेजेस टू वॉच एक ऐसी चीज है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अब उनके ऊपर आप नजर रख सकते हो कि वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। मान लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन्स को मैंने ऐड किया। ये कॉम्पिटिशन्स नहीं है बट हमेशा आपको कुछ इंस्पिरेशन, हाँ, कुछ मोटिवेशन के लिए सेम आपको इंडस्ट्री में। हाँ रखना पड़ता है कभी भी कि देखिए ये मेरे से आगे हैं, मुझे इनसे अच्छा करना है, बेहतर करना है। तो मुझे ऐसी चीज़ों के लिए मैं हमेशा ऐड करके रखता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, उन्होंने फेसबुक पेज अभी शेयर किया था। देखिए हमारा पेज यहाँ पे देखिए, हमारे पास इतने सारे लाइक्स हैं पर इनके पास 5K लाइक्स हैं। अब ये 5K लाइक्स क्यों हैं? वीकली ये लोग कितने पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे कब ये लोग वीकली कितने पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 पोस्ट कर रहे हैं, 5 पोस्ट कर रहे हैं, हम लोग 9 पोस्ट कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास इतने एंगेजमेंट्स क्यों नहीं है? मैं कंपेयर करके देख सकता हूँ। मैं लोग एक कंपटीशन नहीं कहूँगा पर एक मोटिवेशन के लिए मैं यहाँ पे दूसरे NGOs के पेजेस को ऐड कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि क्या कर रहे हैं वो लोग एक्चुअली। ओके, जैसे वो महिला शक्ति, मैम यही है महिला शक्ति केंद्र। उन्हें वो आप देखो चैट में भेजा है ना मैं आपको। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, अच्छा, महिला ऐसे लोग। सिर्फ महिला का। आई थिंक ये इंडिविजुअल प्रोफाइल है शायद। ये इंडिविजुअल प्रोफाइल है शायद, वहाँ पे महिला शायद ये मिस हो गया है यहाँ पे। हाँ वो मिस हो गया नीचे वाला। नो प्रॉब्लम, मैं कोई और NGO का पेज ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। नहीं वो लास्ट वर्ड ऐड कर दो तो देखो क्या होता है। ठीक है, मैं ऐड करके ट्राई। निटल फाउंडेशन, अच्छा ये आपका है अक्षय का। हम्म, हाँ अक्षय का आप कर सकते हैं ना, उनका भी तो है। अक्षय ने शेयर किया है क्या? अच्छा, लिटिल हाँ फॉर। जी हाँ हाँ जी, ओके, निटल फाउंडेशन। थैंक यू अक्षय। उफ, आ गया अभी। आई थिंक यही है, महिला शक्ति प्रशिक्षण। ओके, सर्च हियर महिला शक्ति प्रशिक्षण। हाँ, NGO, ये महिला शक्ति प्रशिक्षण। तो मैंने अभी यहाँ पे मुझे बस वॉच पेज ऐड कर लिया मैंने। ओके, मुझे यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि देखिए मैं यहाँ पे 5th पोजीशन में हूँ। हाँ, सबसे लास्ट में हूँ पता है, पर मैं नज़र रख सकता हूँ कि देखिए इनके इतने सारे लाइक्स हैं, कितने पोस्ट कर रहे हैं, कितने एंगेजमेंट्स आ रहे हैं। मतलब किस मैं एटलीस्ट एक मोटिवेशन के लिए एक गोल बना सकता हूँ कि मुझे इनसे बेहतर करना है, बेहतर एंगेजमेंट लानी है, तो मैं ये कर सकता हूँ। ये बेहतर चीज़ रहेगी एक NGO के लिए, ताकि हम लोग एक्चुअल में हम लोग ऐड कर सकें। ओके, दिस इज़ वन थिंग। अनदर इज लोगों को समझ में आ गया कि फेसबुक पेज और ग्रुप्स कैसे, हाउ वी कैन गेट द एंगेजमेंट्स ऑन दिस। अक्षय, yes, I Yes, don't have to say to Gagan. समझ में आ रहा है। हाँ, Gagan, any other points that you can add? Yeah, I mean essentially how I would go about is I'll make a list of sorry नहीं बोला। तो अगर मेरा ये कहना है कि अगर मैं किसी चीज को पहले देखता हूँ तो मैं हम लोग कहते हैं उसको ऑडिट, सोशल ऑडिट, सोशल मीडिया ऑडिट। तो उसमें एक तरह का हमें ये मिलता है कि
अगर इनके कोई पोस्ट हैं तो वो कौन सी स्टोरी जो इनकी कम्युनिटी है उसमें पसंद आ रहा है। सही है। तो उससे वो उसको आप लिख लो, उसको लिख के देखो कि उसके अंदर में कौन सी एक फीलिंग है जो वॉलंटियर्स को या कम्युनिटी को पसंद आ रही है। कम्युनिटी को पसंद क्योंकि है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है मेनी टाइम्स कि हम सब एक जैसे ही हैं, मतलब सही फ्रॉम द स्टोरी के हिसाब से ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं, मेजोरिटी कहते हैं सर ये मूवी अच्छी है, ये मूवी खराब है। तो अभी इसमें मेजोरिटी की बात करता हूँ, मतलब अगर आप देखा जाए तो खराब है तो सारे ही बोलते हैं खराब है, अच्छी है तो वो सारे ही बोलते हैं। तो एक तरीका मतलब वो होता है। तो आपको मतलब वो लेके आपको चलो कि उसमें कंटेंट में क्या चीज है जो चाहता है। तो एक आपको एक ये मिलता है कि चलो हमारे पास भी अगर कुछ ऐसा कंटेंट है, और या हमारे पास वो कंटेंट है मतलब वो हमने दिखाया नहीं है, वो मतलब उस ढंग से हमने उसको प्रोड्यूस नहीं किया, करेक्ट। तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते तो एक वो ऑडिट में बेसिकली वो सब समझना होता है कि वो ब्रांड अगला क्या कर रहा है, सही जो हम उनसे सीखें सही सीखें और वो सीखने के बाद इम्प्लीमेंट कर दें। और सही। ये नहीं है कि हर चीज ही वहां से लेनी है, आपकी भी अपनी स्टोरी है। मतलब ये नहीं हो कभी कि आप उन्हीं की स्टोरी और वही बन गए उसका वही कॉपी डुप्लीकेट। करके डाल दें। हाँ तो आप आपकी अपनी स्टोरी है, कभी अपनी इंडिविजुअलिटी को ना खोलिए, मतलब खोइए। बट वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अरे ये पसंद आ रहा है तो हमें जो बोलने का तरीका है हम ऐसे बोल सकते हैं। सही जैसे है। अभी हम लोग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इंग्लिश हिंदी, कहना तो कम्युनिकेट है ना, मतलब किसी को बताना है। सही बट है। यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज यू वांट, है ना, आजाद तरह के, एज लॉन्ग एज आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कहानी बन रही है, मतलब है। सही है। तो सही है। मेरा तो उसके बाद लेके फिर अपना आप देखो कि हमें फिर जैसे आप कह रहे हो कि नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो आपने तो एक कहानी पकड़ ली कि हमें कौन सा कंटेंट चाहिए। इसके बाद अगर हमें नंबर्स चाहिए तो देन यू लुक एट क्या फ्रीक्वेंसी में चाहिए, किस कितने आपको डालने होंगे, जो कि यू स्टार्ट बिल्डिंग ट्रैक्शन, बिकॉज इनका एल्गोरिदम होता है। और एल्गोरिदम इज अगेन नाउ आई थिंक द रीसेंट वन इज कि मोमेंट यू पोस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक इट, बिकॉज उसका करेक्ट। वो क्या प्रोसेस है ना, यू लाइक इट एंड फिर वो उसके अंदर में उनके जो इट्स थिंग दैट गेट्स फॉर्म्ड। तो यू हैव टू सी कि आपके कौन से रेगुलर हैं, एंड जो मोमेंट यू पोस्ट दे विल लाइक इट। तो कौन से टाइम में आप करोगे कि जहाँ पर मोमेंट यू पोस्ट दे हैज टू बी इंस्टेंट हिट, सो दैट इट गेट्स वो फेसबुक स्टार्ट्स पुशिंग दैट कंटेंट आउट। करेक्ट। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंड इसका एल्गोरिदम क्या हो रहा है, मतलब कैसे बिहेव कर रहा है। तो वो आपको थोड़ा एक टाइमिंग के हिसाब से आप देख लो। गॉट इट। और क्या कह सकता हूँ, और आप बोलते रहो, मैं ध्यान में आता रहेगा। सही है। मैं बताते रहूंगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, एक एक यहाँ पे एडवांटेज ये है इसका। देखिए मैं ये बताना आपको भूल गया, या जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि उस वीक ने उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने पोस्ट किए हैं, कैसे हैं उनके पोस्ट। इंडिविजुअली मुझे उनका पेज खोल के मुझे देखना नहीं पड़ेगा, पर मैं यही से मैं देख सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ मूविंग टू डिफरेंट डिफरेंट पेजेस एंड चेकिंग, आई कैन चेक फ्रॉम हियर इटसेल्फ कि कितने पोस्ट इन्होंने किए हैं, क्या क्या किए हैं, कितने लाइक्स कमेंट्स आए हैं, सब कुछ मैं यही भी से देख सकता हूँ। तो इस एनजीओ ने अभी तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया इस हफ्ते, सो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आया अभी। महिला शक्ति फाउंडेशन ने पोस्ट किया है, सो यू कैन सी दिस वन। सो हाँ जी, या एक और याद आया, इफ आई मे। यस यस सॉरी, प्लीज। आप कह रहे थे तो मैं हाथ नेक्स्ट टाइम उठा दूंगा, उसमें आता है ना नो नो। वर्चुअल हाथ। हाँ। वो आपको भी है। एक और होता है क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। हम्म मैं अभी देख रहा था तो मेरे को समझ में आया, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंगेजमेंट। हम्म। क्योंकि अगर आपको सर क्वालिटी ऑफ द कंटेंट में एंगेज नहीं हो रहा, तो फिर फेसबुक बंद कर देता है वहां पर। तो कहीं ना कहीं वो यू हैव टू रियली दो चीजें, एक मतलब गॉट टू सी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर लाइक 1 महीने का या 3 महीने का, व्हाट आर योर कंटेंट कैलेंडर्स, बिकॉज आपके पास भी अपने प्रोग्राम अपने बना के रखे हुए हैं, राइट। तो सही यू है। वुड देन लुक एट कि हम इसको किस ढंग से फोटोग्राफी में कैप्चर करेंगे हमारी अपनी स्टोरी जो है। सही है। So when people look at it, the moment they start liking, so I think what I'm trying to say is it has to be very memorable. मेमोरी। जो आजकल मैं देख रहा हूँ a lot of people are forgetting, मतलब बस अभी जैसे पोस्ट कर बातें दिया। होती हैं कि हाँ। हाँ 4 हमें ये हफ्ते में डालनी है, अरे फर्स्ट क्या डालना है तेरे को। मतलब सही है। मतलब वो जो है डाल, क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, द क्वालिटी क्वालिटी इज इज रियली वेरी इम्पोर्टेंट में। इंपॉर्टेंट, मतलब सर अभी का जैसे कहना है कैंसर वीक है, हाँ, एक एक पोस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंस दें हम लोग, यही गगन। एब्सोल्युटली। आप जैसे कैंसर का बताना चाहते हो, अभी आप अपना ऑडियंस को मैप करके आपकी जो लैंग्वेज है उसमें डालो, सही है। क्योंकि आपके ऑडियंस अलग हो सकते हैं, अभी मेरे ऑडियंस अलग हो सकते हैं, सही है। सही यू है। नो। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी आई हैव मोर इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, तो वहां पर मैं हिंदी यूज करूंगा तो एंगेजमेंट नहीं होगी। नहीं होगी। आपके वहां पर अगर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, आप इंग्लिश लिखोगे, सिंपल चीज है, हम्म। बट एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा और मे बी
your audience would like something where you can put it in a very positive way. Positive. Whereas I could put it into a like हम लोग में जैसे कहते हैं कि आई ओपनर काइंड ऑफ थिंग कि देखो लोग मर रहे हैं, मतलब स्टॉप स्मोकिंग, मतलब तो इनकी कम्युनिकेशन का भी स्टाइल अलग है सही। कि कहीं ना कहीं आप कोई कहता है कि मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम है, आप समझो, मतलब इट्स ऑल्सो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। और एक होता है नहीं, किसी की बिहेवियर को चेंज करो, क्योंकि अगर आपने दिखाना है किसी को, जैसे आपके सिगरेट के पैक में वो जो कैंसर वाले फोटो दिखती हैं, उसको भी कहीं ना कहीं वो एक रिपल्सिवनेस एसोसिएट करना होता है ना, मतलब यू बेसिकली स्टार्ट बिल्डिंग एसोसिएशन। तो फिर वो उसको भी देख के आप कहीं ना कहीं, तो अगेन डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट मैसेजिंग। सो छोटी छोटी चीज़ें जब कभी भी एनजीओ में पोस्ट होती हैं तो लेट्स स्टार्ट गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द पोस्ट। हर पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंस हम लोग देंगे, उसको केयरफुली अगर बनाएंगे तो बहुत बेहतर बनेगा और अच्छे ऑडियंस तक रीच आउट होगा। दिस इज़ वन थिंग। मैंने फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज के एडवांटेजेस के बारे में मैंने बता दिया और इसके इनसाइट्स के बारे में बता दिया। थोड़ा सा एड्स के बारे में बता दूंगा, देन वी कैन नो जस्ट वाइंड अप। मैं इसके बारे में, मैं डोनर्स और वॉलंटियर्स सब कुछ अभी मैं इनके इसके पॉसिबिलिटीज के बारे में बता देता हूँ, तब ताकि मैं कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ आपको मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। एक तो फेसबुक एड्स है जो कि बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही लेस प्राइस है, बहुत ही चीप प्राइस है, मतलब आपके बजट में आराम से फिट हो जाएगा। बहुत ही लेस प्राइस है इसका, फेसबुक एड्स का। फेसबुक एड्स रन करने के बहुत अच्छे फायदे हैं कि आप ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, जगह को आप टारगेट कर सकते हो, और जगह से, ऑडियंस से, लैंग्वेजेस से, जेंडर से, आपको जॉब से, जो लोग जॉब करते हैं। मान लीजिए कि मुझे अभी मैं यहाँ पे हूँ पर मुझे तमिलनाडु में मुझे काम करना है, तमिलनाडु में मुझे अपना काम करवाना है, वहाँ पे आई वांट टू वर्क ओवर देयर बिकॉज आई हैव नोटिस्ड लॉट्स ऑफ पीपल आर स्टार्विंग ओवर देयर, सो मैं तमिलनाडु में काम करना चाहता हूँ। ऐसे में पर मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, ओके। सर कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है वहाँ पे, ओके। सो देखिए मैं यहाँ पे हूँ, बैंगलोर में हूँ अभी, पर मुझे तमिलनाडु में काम करना है। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है अभी तमिलनाडु में, बट आई वांट टू मेक इट। हाउ डू आई डू इट? ओके, वन बेस्ट वे इज एड्स। ओके, 75 रुपीज़ का, 74 रुपीज़ का अगर बेहतर रिचेस आ जाए तो उससे भी कम का आपको ऐड बनाने को आपको मिल जाएगा। ओके, सो इसमें आप ऐड बना सकते हो वॉलंटियर्स के लिए, चाहे वॉलंटियर्स से हो। आज देखिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। आज हमारी जो एनजीओ है, हम लोग सिर्फ कर्नाटक से शुरू किए थे, बैंगलोर से शुरू किए थे। Now we work in Tamil Nadu, we work in उत्तर प्रदेश, we work in Kashmir, but हमारे कोई भी connections नहीं है, physical connections हमारे कोई भी नहीं है वहाँ पे, but still we work everywhere over there, and that is because of power of social media. I honestly say this, that is only because of power of social media. आज हमारे पास 700 वॉलंटियर्स हैं, एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, जो कि एनजीओ के लिए हर टाइम रेडी रहते हैं, काम करते हैं। एक के पास नहीं हो सकता तो दूसरे के पास पास ऑन करते हैं, कोई भी काम होता है, दिस पीपल विल बी एक्टिव। हाउ? जस्ट बिकॉज हम लोगों ने स्टूडेंट्स को रीच आउट किया, हम लोगों ने डोनर्स को रीच आउट किया, हम लोगों ने we made this happen. ओके, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप ला सकते हो। एक तो वॉलंटियर्स के लिए, लीड जनरेशन के लिए आप लीड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे साइन अप फॉर्म। मैंने हादी का जो मैंने पोस्ट बनाया था इस वेबिनार का, मैंने इसी से बनाया था, लीड्स से, जहाँ से मुझे फॉर्म फिल करने, जहाँ से मुझे मैंने फॉर्म बनाया था, इंस्टेंट फॉर्म बनाया था, जहाँ से आप लोगों ने फिल किया फॉर्म को और मैंने लीड जनरेट की यहाँ से। और मुझे जब कभी भी वेबसाइट पे मैंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है या फिर वेबसाइट के पेज के लिए मैं ज़्यादा ट्रैफिक चाहता हूँ तो ट्रैफिक यूज़ कर सकता हूँ, तो एंगेजमेंट्स, लाइक्स। सो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और ट्रैफिक के ज़रिए आप डोनेशंस रेज करने के लिए आप ट्रैफिक यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। यस, आपको CSR के आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। CSR तो आप समझो कि ना के बराबर समझो, कि बहुत रेयरली आपको CSR आपको फेसबुक में आपको ढूंढ के पकड़ के आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस। बट इंडिविजुअल डोनर्स, जहाँ तक मैं हमारी एनजीओ की बात करूँ तो इंडिविजुअल डोनर्स
अगर आपको इंडिविजुअल डोनर्स चाहिए तो आप यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो ट्रैफिक के ज़रिए, जहाँ जैसे आप डोनेशन का बटन डाल के वहाँ पे आप डोनेशन लिंक उस बटन में डाल सकते हो और आप वहाँ से आप डोनेशंस को डोनेट करने के लिए आप बोल सकते हो। पर आपका कंटेंट अच्छा होना ज़रूरी होता है। पर कंटेंट के लिए मैं टूल्स जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ इसमें क्योंकि वक्त कम है और ये बस ग्लांस वेबिनार है। अगर if after this webinar if everyone are okay with this, will know for sure we'll arrange a course so that we all can learn from each other, we'll take this journey forward. Okay, सो फेसबुक एड्स हैं जो कि आप फेसबुक एड मैनेजर जो कि आप यहाँ पे 4 बटन क्लिक करके आप एड्स यहाँ पे देख सकते हो। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस हैं एड्स कैसे बनाने हैं सब कुछ। ओके, आपको ऑडियंस डिसाइड करने होंगे और कंटेंट आप जिस तरह का डिज़ाइन कर आप एक ही ऐड में आप डिफरेंट ये भी कई सारे ट्रिक्स हैं एड्स के। एक ही ऐड में आप डिफरेंट इमेजेस रख सकते हो ताकि मेरे इंस्टाग्राम के लिए मैं डिफरेंट इमेज रख रहा हूँ, डिफरेंट साइज़ का इमेज रख रहा हूँ और फेसबुक फीड्स के लिए डिफरेंट साइज़ इमेज रख रहा हूँ। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो कितने दिनों तक मेरा ऐड चले, कितने टाइम में मेरा ऐड चले। बस 2 घंटे के लिए मेरा ऐड चले और उसके बाद मेरा ऐड ना चले। ये बहुत सारे ट्रिक्स हैं इसमें। एक तो ये चीज़ हो गई फेसबुक की, एड्स के ज़रिए आप ये सब कर सकते हो। फेसबुक में एक बहुत अच्छा फीचर है फेसबुक का, जिसे कहते हैं हम लोग रीमार्केटिंग। ठीक है, इसको रीमार्केटिंग कहते हैं। रीमार्केटिंग डोनेशंस के लिए CSR के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होगा आपको। तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे शेयर कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर? जी मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ अभी। ये अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? अभी दिख रहा है जी। देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ अभी। देखिए फेसबुक एड्स देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पर फेसबुक में एक ऐसी चीज़ भी है जिसे हम लोग रीमार्केटिंग कहते हैं। रीमार्केटिंग फेसबुक पिक्सल के ज़रिए, जिसका होप आप सबकी वेबसाइट्स होंगी। अगर वेबसाइट्स नहीं है तो भी ठीक है, हम लोग उसमें भी अगर चाहिए तो मैं आपकी मदद करूँगा वेबसाइट कैसे बनाने हैं सब कुछ। सो बस वेबसाइट में आपको एक छोटा सा कोड मिलता है। वो कोड आपको वेबसाइट में डालना होता है। जैसे ही आप उस कोड को वेबसाइट में डालोगे, मान लीजिए किसी CSR वालों ने, किसी डोनर्स ने, किसी CSR वालों ने यहाँ पे आके आपका वेबसाइट देख लिया और वापस चले गए। बस वेबसाइट देखा उसको, तो बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि डोनेशन मैं दे दूँ इस वेबसाइट को, यहाँ तक इस पेज तक गए, पर उन्होंने डोनेशन नहीं दिया, फिर वो वापस चले गए। ऐसे स्पेसिफिक लोगों को, सिर्फ इन्हीं लोगों को आप अपना ऐड दिखा सकते हो रीमार्केटिंग के जरिए। बिलीव मी, रीमार्केटिंग इज अ बेस्ट टूल टू जनरेट द डोनेशंस, CSR एंड द ऑडियंस। जो आपके बिजनेस में आके इंटरेस्ट दिखा के चले गए वापस, उनको रीगेन करने का नाम है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग का बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो रीमार्केटिंग चाहो तो रीमार्केटिंग आप अपनी NGO के लिए यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको डोनेशंस CSRs और बहुत सी चीज़ों में आपको इससे मदद मिल जाएगी। ठीक है, जैसे वेबसाइट मान लीजिए ये ऐसे काम करता है कि मेरी वेबसाइट पे कोई आया, अभी डोनेशन देने के लिए आया और वो वापस चला गया। अभी वो फेसबुक पे जाके कुछ और देख रहा है, तो फेसबुक ये करेगा, उसको मेरी ही वेबसाइट का ऐड फिर से दिखाएगा, ताकि उसको फिर से इंटरेस्ट आ जाए मेरी वेबसाइट पे, ताकि फिर से वो मेरी वेबसाइट पे आ जाए और फिर से वो डोनेशन देना शुरू कर दे। ऐसे वो टारगेट करके फेसबुक उन्हीं को ऐड दिखाएगा। ठीक है, दिस इज वन थिंग। जी आप कन्वर्जन ऐड के बाद जी समझा नहीं मैं, आप बता रहे। आप कन्वर्जन ऐड के बारे में बोल रहे हैं क्या? कन्वर्जन ऐड से समझा नहीं मैं। कन्वर्जन ऐड मतलब जो पिक्सल अकाउंट क्रिएट करके जो करना है, वो कन्वर्जन ऐड। जी कन्वर्जन ऐड it's a different part. Gagan, am I right on this? Because conversion, I believe it's a different app. Conversion app and the API it's a different part, and Pixel it's a different part. I don't know, करता नहीं हूँ, बट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया बता देता हूँ। कन्वर्जन ऐड होता है कि आप आई हैव टीम्स हु लुक आफ्टर ऑल दिस, बट आई हैव अ बेसिक कंस्ट्रक्ट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो रीमार्केटिंग का पर्पस होता है कि आपने अभी डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज आपको खरीदना कुछ भी चीज, कोई एक्शन लेना और उसके आपका इंटरेस्ट है मगर आप ले नहीं रहे हो, तो जो बीच का जो गैप है वो रीमार्केटिंग
ये करता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। उसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आपको सोचो, एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, आपको लड्डू खाना है, आपने सबने लड्डू खाए हैं, हाँ ठीक है। अभी एक चीज बताओ, लड्डू आप नहीं खरीदोगे अगर उसके अंदर में आप कहते हो कि मैंने ना बहुत इस हफ्ते मिठाई खाई है, अभी और खाने से बीमार पड़ जाऊंगा। सोचो एक ओके सिचुएशन में, ओके तो आपको खाना है, दिल तो कर रहा है, मगर आपने इतनी मिठाई खाई है, अभी बोलते हो, नहीं खाना नहीं मैंने। खाना। अच्छा अगर आप जैसे या अगर आप कोई let's say, आपको नहीं, किसी को भी मतलब हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप बोलते हो यार खाना तो दिल तो करता है मगर खा नहीं सकता। तो ये जो मतलब एक मेटाफर की तरह मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे करेक्ट बता रहा हूँ कि वो आपका उसका जोड़ने के लिए, या आपने अभी डिसाइड किया कि यार इसको मैं अगर देता हूँ तो इनका कुछ रजिस्ट्रेशन देख लेता हूँ, सही है। तो भी आपको याद करा देता है, सो देर इज अ गैप। सो वो रीमार्केटिंग करता है। कन्वर्जन एड किसको कहते हैं मेरे हिसाब से, आई डू नॉट नो क्या है मतलब, बट कन्वर्जन एड इसेंशियली मीन अभी आपने पूरा कंफर्म कर लिया। वही लड्डू वाला एग्जांपल देते हैं, अभी आपने पूरा ये कर लिया कि भाई लड्डू अच्छा है, असली घी से बना है, प्राइस ठीक है, सब चीज ठीक है, अभी बस खरीदो इसको। तो आपने सोचा और खरीदने के बीच में 3-4 लेयर होते हैं। तो कन्वर्जन जो है लास्ट का लेयर है। अभी जाओ ऑर्डर करो और ठीक है, सब चीज आपका हो जाएगा। तो वो उसका वो ये है Got it. कि मतलब थ्योरीज हैं अलग अलग। तो ये पिक्सल, ये जो सर मैं रीमार्केटिंग कुछ पार्ट बोलना है। चाह रहा जी जी बताइए लक्ष्मण सर। हूँ। सर हमारा भी एक एनजीओ का फेसबुक पेज है, हम्म तो हम उसको एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम्म। और बटन्स में भी हम डोनेशन वाला करना चाह रहे थे। इस तरह का टूल भी फेसबुक में होता है। जी तो होता है। सर हाँ जी, जी तो सर उसका वो क्या प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से होता है, वो थोड़ा उसका मुझे थोड़ा बताएंगे आप? जी जरूर जरूर जरूर। देखिए, एक तो जैसे ही आप फेसबुक पेज बना लेंगे, फेसबुक पेज बनाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बताया मुझे कि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ थोड़ा सा। जो आपने मुझे बताया कि फेसबुक पेज पे आपको जो है नॉन प्रॉफिट के थ्रू रजिस्टर करना है, इसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो आप कैटेगरीज आप सेलेक्ट करोगे ना, आप सेटिंग्स में जाओगे तो आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। वहाँ पे आप कैटेगरीज, आप बस कैटेगरीज को चेंज कर दें और वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि एनजीओ है, एनजीओ के नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल सर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा पेज ऑलरेडी बना हुआ है, हमने उसका प्रोफाइल भी चेंज कर दिया, पर वो डोनेशन का बटन नहीं आ रहा है। सर फिर वो हाँ कहते हैं कि आपका नास्कॉम में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमारा उसमें भी है। गिव इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमारा उसमें भी करेक्ट करेक्ट रजिस्ट्रेशन है। करेक्ट सर। ये जो डोनेशन बटन होता है, फेसबुक का एक क्राइटेरिया है कि कुछ 10,000 या फिर कुछ तो आपके फॉलोअर्स या फिर लाइक्स होने चाहिए, एक लिमिट है उनकी। जैसे ही आप वो क्रॉस कर जाओगे तो फेसबुक खुद ब खुद आपको रीच आउट करेगा उस बटन को ऐड करने के लिए। कि डोनेशन बटन कुछ प्रीमियम एनजीओज के लिए मिलता है, जो कि बहुत उनका एक बेस होता है कि 10,000 फॉलोअर्स मिल जाए, 10,000 लाइक्स मिल जाए, इनका अच्छे से कंटेंट है, ये जेन्युइन है, तभी वो लोग आपको बटन देते हैं, बटन प्रोवाइड करते हैं अभी। सर क्या है, आप अगर एक बार हमारा एनजीओ का फेसबुक पेज देखें, rmkem.चाची आवास के नाम से है, जी जी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उससे ज़रूर। आप कितने क्या हम मेंबर्स लोग होंगे कहाँ आपके? गलती कर रहे हैं। आपके कितने मेंबर हैं साहब? सर लगभग 1700 1700। पेज लाइक से, हाँ। तो एक बार नेट में जाके आप देख लो कि उनका ये गेट कॉन्सेप्ट होता है। गेट कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि जैसे आपकी फेसबुक को जैसे प्रूव करना है कि आपकी कंपनी जेन्युइन है, बिकॉज गवर्नमेंट उनको भी पकड़ सकती है। तो या तो वो एक गेट डाल सकते हैं कि आप 1 साल से ये ऑलरेडी हैं, वो मुझे नहीं लगता। दूसरा हो सकता है कि हाँ, आपके पास इतने हजार कस्टमर्स हैं, उसके बाद हम आपको ये फीचर देते जाएंगे, तो जैसे आपके कस्टमर बढ़ी जा रहे हैं वैसे वैसे आपको वो सर्विसेज दे सकते हैं। मगर एक बार नहीं नेट में सर, जाके आप देख मैंने तो लीजिएगा। सर कुछ एनजीओ का देखा, उनके 800 लोग जुड़े हैं, उनके पेज पर सिर्फ 800 लोग हैं। तो एज ए वो भी कन्वर्ट एज ए नॉन प्रॉफिट है, और उन पे बटन आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई हमारी समझ में कहीं वो चीजें रही हो, मे बी। सर नहीं, जब मैंने लास्ट टाइम मैंने भी कोशिश की थी हमारी एनजीओ के लिए, जब ऐड करने के लिए, तो मुझे भी एक ईमेल आया था फेसबुक से कि यू कैन ऐड द डोनेशंस बटन, एवरीथिंग, यू कैन यूज दिस फीचर। जब मैंने ट्राई किया तो मुझे वैसे कुछ मैसेज आया कि यू हैव टू गेट दिस मेनी लाइक्स, दिस मेनी मैसेज। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। सर एक बार हमारा भी देखें, एक बार हो सकता है कुछ हमें लग जाए कि हमारी प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम हो।
जी ज़रूर, आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर दीजिए फॉर श्योर। मैं देख लूँगा उसको। शायद जैसे सर बोल रहे हैं, लक्ष्मण सर जैसे बोल रहे हैं कि ग्यू इंडिया का कुछ तो प्रोग्राम है, ग्यू एश्योर्ड, हम्म, तो शायद वो वेरीफाई करता है फेसबुक उनके थ्रू, ग्यू इंडिया के थ्रू, तो उसके बाद शायद डोनेशन बटन देता है, ऐसा कुछ तो है। ग्यू एश्योर्ड प्रोग्राम है अच्छा। फेसबुक का, जी। मुझे भी तो लगता वो है वो कुछ बहुत गेट का क्राइटेरिया होगा। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा प्रोग्राम, आपने क्या हमारा बोला भी सर? ट्राई चल रहा है। ग्यू एश्योर्ड प्रोग्राम, यू आर एश्योर्ड। ग्यू एश्योर्ड गिव अ शॉट। थ्रू अच्छा ग्यू ये। इंडिया, ग्यू इंडिया है ना, तो उनके थ्रू वो वेरीफाई करते हैं अच्छा। एनजीओ को, तो उसके लिए ऑडिट लगता है, ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट, एटीजीट पहले भी ये सब लगता है। ओके। जी मैं भी ये इसमें आपने तो, हम्म, सॉरी, नहीं मैं वो अ, कि आपने जब किया था तो ये सब प्रोसेस आया था, मतलब कि आपने जब पेज बनाया था तभी बटन दे दिया था आपको? नहीं, पेज बनाने के बाद नहीं, शायद वो पेज कोई भी बना सकता है, वो एनजीओ हाँ हाँ। को पेज किसको मिल सकता है, लेकिन जो टूल्स है, फेसबुक का टूल्स है, जो डोनेशन बटन है और बाकी के टूल्स है, उसके लिए तो ग्यू एश्योर्ड प्रोग्राम हमको क्वालिफाई करना पड़ता है, शायद ऐसा कुछ तो मुझे है। भी लगा जब आपने कहा ना, तो इससे मतलब बिजनेस के अपने सब वो सही है। ग्लोबल क्राइटेरियाज होते हैं। हाँ, ग्यू तो इंडिया हाँ प्रोग्राम हाँ। है कुछ, तो एक्चुअली सर मैं भी देख लेता हूँ, इसके जैसा बारे में यूट्यूब, पढ़ लेता हूँ। गूगल का भी वैसे ही है जी। ना, कुछ तो गूगल का भी एक प्रोग्राम है जिसके हाँ थ्रू हाँ। 2 लाख डॉलर कुछ तो देता है गूगल एडवर्टाइजिंग के अच्छा लिए, अच्छा। तो उसका भी आपको बहुत आप, बड़ा प्रोग्राम है सर, लेकिन वो क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, हाँ, नहीं अभी तो वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट का साइन अप कहीं ना कहीं चल चाहिए होगा मेरे ख्याल से, कि हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट फिर पूछ सकती है कि आप वो स्कैम बीच में ना हो ना, तो उसको आई थिंक वो वैलिडेट करने के लिए गवर्नमेंट का ये जरूरत होगा कहीं ना कहीं कि हाँ, हमारे गूगल पास ये ग्रांट। सर्टिफिकेट है। हाँ हाँ, तो जी। फिर वो गवर्नमेंट को बोल सकते हैं देखो हमारे पास तो इनके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, अभी हमने इनको वी ऑप्शन कैन। दे दिया। हाँ। सो गाइस, दिस इज वन थिंग, वी आर एट द एंड ऑफ द सेमिनार। एक मैं आखिरी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा इसमें। बस मैं नोटपैड खोल लूँ तो अपना। शायद एक बार आपसे पूछना था मुझे, आपका नाम शाहिद है ना? जी शाहिद है। शाहिद ही जी सर। नहीं, शाहिद है। शायद शायद। नहीं, आपने जब किया था तो आपका बटन आ गया था एक ही बार में, कि जी आपने भी नहीं, ये हमारा ऐसी? हमारा बटन नहीं आया था जब मैंने, तो मुझे ईमेल आ गया था कि ऐसे ऐड कर लो बोल के, मुझे ईमेल आ गया था। ये कितने दिनों के बाद आया था जब आपने बनाया था, ये बनाने के बहुत बाद? बहुत रिसेंटली आया था शायद। अच्छा, तो आप पहले भी विदाउट डोनेशन आप नहीं कर पा रहे विद थे डोनेशन हम लोग मतलब? फेसबुक पे, मैं बता रहा हूँ ना, हमने एड्स के थ्रू ही मैंने डोनेशन रेज किया है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा हाँ। अच्छा। तो जब तक हम लोगों को ये बटन नहीं आया था, हम लोगों को बटन, हम लोग को तब तक हमें पता भी नहीं था कि डोनेशन बटन के थ्रू ये डायरेक्टली रेज कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ। उनने फिर आपको, फेसबुक ने आपको फिर बताया कि फेसबुक ने, हाँ, अभी आप सारे, हाँ फेसबुक ने हमें डायरेक्टली रीच आउट किया कि ईमेल डालो, ईमेल आया था हमें कि डोनेशन का बटन ऐड कर लो। अभी आप ओके, मतलब एलिजिबल हैं? जी नहीं, अभी भी टीम उसके ऊपर शायद काम कर रही है, मैंने अभी तक नहीं देखा है फेसबुक पेज पे, बिकॉज आई अच्छा डोंट हैंडल दिस। अच्छा। हाँ। लेकिन सर मेरा ये कहना है कि मतलब डोनेशन बटन की जरूरत नहीं ना वैसे, अगर आपको मार्केटिंग आती है, रेस। जी अगर आपको मार्केटिंग आती है, अगर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज पता है कि किस तरीके से डोनेशन डोनर्स को रीच आउट करना है, वॉलंटियर्स को रीच आउट करना है, या फिर इंटर्न्स को रीच आउट करना है, तो आपको डोनेशन के बटन की, स्पेसिफिक बटन की आपको ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ नहीं, तो तक। आप वो कर सकते हैं ना, हाँ। जैसे मैं कितनी बार देखता हूँ वो जीपे वाला नंबर दे देते हैं, अपने हाँ, फोन नंबर, नंबर या और फिर वो क्यूआर कैल कोड दे वो, देते हैं। हाँ, और उसमें फोटो रहता है कि ये जैसे डॉग का मैं काफी ये करता हूँ, हम्म। तो करेक्ट। वो काफी सारे मेरे पास ग्रुप है, उनका कहते हैं ये डॉग हमारे पास है, इनका ये प्रॉब्लम है, इनका लिए ये खर्चा आएगा, आप जो करना चाहोगे दे दो। एंड उसके बाद जो जो देता है उसके बाद वो बिल, और साथ में जो मतलब जैसे जितना टोटल बिल दिया, खर्चा हुआ, और उसका स्टेटमेंट ओके फिर वापस वही पोस्ट में डाल देते हैं, तो ठीक है। वैसे भी आप कर ओके सकते हो, मतलब फोटो बस अपना वो जीपे से पेमेंट ले लो, ओके, बट ये छोटी मोटी है, कोई बड़ी नहीं है मतलब। ये कंटेंट करेक्ट करेक्ट, क्रिएशन के लिए कुछ टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत प्लीज अच्छे प्लीज। टूल्स हैं, जो कि आपको यूज़फुल हो सकते हैं, तो ये शायद आप इसके बारे में यस। जानते भी होंगे। एक तो सेरेलो है, और दूसरा है कैनवा। सॉरी। कैनवा बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ करते हैं। एक कैनवा टूल है,
जहाँ पे हम लोग नो यूज़ करते हैं ये कंटेंट क्रिएशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि फेसबुक का जो बैनर होता है, बैनर वो ऑटोमेटिकली सारे साइजेस ले लेता है, उसके पास पहले से ही बहुत सारे साइजेस हैं जहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। इसमें देखिए कैनवा है, यहाँ से आपको पहले से ही बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिसमें मैंने इसका प्रेजेंटेशन भी मैंने यही से बनाया है। तो आपको बहुत सारे प्री मेड टेम्पलेट मिल जाएंगे, एनजीओज के लिए डेडिकेटेड टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो आपके फेसबुक पेज के लिए, अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए। कैनवा बहुत अच्छा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा है जोहो सोशल। ये हम लोग जब कभी मुझे इमीडिएट पोस्ट करना होता है, मेरे पास 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है ट्विटर, लिंक्डइन, दूसरा इंस्टाग्राम और फेसबुक। मुझे चारों में मुझे एक साथ पोस्ट करना है। ओके, ऐसे वक्त में मुझे, और मैं कहीं भी बाहर में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने एक बच्चे की फ़ोटो ली, मुझे अभी के अभी मुझे पोस्ट करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, व्हाट विल आई डू। सो एक टूल है जोहो सोशल ऐप है, जोहो सोशल बोल के एक ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है। ओके, मैं हम लोग कई दिनों से यूज़ करें। सो यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार पोस्ट करना होगा और सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स में एक साथ पोस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा टूल है, चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए इस टूल को। अच्छा, ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं सर, या सिर्फ अपना ग्रुप में आप नहीं पोस्ट करें, क्योंकि ग्रुप तो एक इंडिविजुअल, जैसे फेसबुक का होगा, पेज के बाद आपके ग्रुप्स होंगे, राइट। तो लिंक्डइन में होगा तो वहां से अलग से ग्रुप होंगे। तो आप सर जो हो सोशल ऐप, ये ऐप है, ब्राउजर मोड है उसका या ऐप से करेंगे सर इसको? पहले इसको आप ब्राउजर में आप अपने सारे अकाउंट्स को कनेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप ऐप्स के थ्रू आप इसको पोस्ट कर सकते हो। यार फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जितने भी यहाँ पे बता रहा हूँ सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सर, कोई भी चार्जेबल नहीं है। ओके, थैंक यू सर। जी इसको कहते हैं पब्लिशिंग टूल। हाँ। इसके 2-3 हैं। एक और है जिससे आप कहीं भी कर सकते हो, जी मुझे तो याद नहीं आ रहा उसका नाम, कुछ बफर। हाँ, बफर है जहाँ से पोस्ट कर सकते हो। तो काफी सारे हैं, तो जिस पब्लिशिंग, सोशल मीडिया पब्लिशिंग टूल करके आप देख लो। जी 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 हाँ, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने ट्राई किया था सारे टूल्स को वन बाय वन कनेक्ट करके। और बट आई थिंक ये फ्री वाले नहीं है, फ्री सर यही जोहो ही होगा। हाँ, जोहो सोशल बाकी सारे पेड है। फ्री। हाँ, हाँ जोहो जी। सोशल इज फ्री। ये फ्री टूल है और बहुत अच्छा टूल है। आप जैसे ही आप @@ करके आप किसी को भी टैग करना चाहते हो तो उस ऐप के अंदर से ही आप कर सकते हो। ये एक प्रीमियम फीचर दिया हुआ है इसका। ओके, थैंक्स। नाइस। आप इसको और आप ये यूज नाम, कीजिए। ये इसमें वो भी आपकी कंपनी से की बात हो रही है, वो बता देगा आपको। जी समझा नहीं। नहीं, ये लिसनिंग के लिए उसके वो जो लिसनिंग का जो फीचर होता है उसको पे करना वो होता है। नहीं। हाँ अच्छा, वो अच्छा। हाँ, सारे प्रीमियम फीचर्स हैं सारे पब्लिशिंग टूल्स के, जैसे हाँ, मैं, वो ये हाँ प्रीमियम क्या कहते हैं, प्रीमियम में आता है ना, हाँ कुछ प्रीमियम फ्री में आता है है तो जी। कुछ फ्री है। मैं लोकोबस के लिए काम कर रहा था, जब लोकोबस जो टूल है बहुत अच्छा टूल है, तो उसमें अच्छा वो फीचर्स था। बट यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया एनजीओ के लिए, बट ये बहुत ज़्यादा चार्जेबल है। तो सर ये आपने जो सेलरो बताया, ये भी कैनवा के जैसे ही है? ये भी इसको कैनवा के ऑनलाइन जी जी कैनवा के जैसे ही, कैनवा के जैसे है। सेरेलो में ये क्या बोलते हैं, कैनवा में आपको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टेम्पलेट्स, आपको बहुत अच्छे टेम्पलेट हैं, अपडेट होते रहते हैं कुछ मंथ्स के हिसाब से। बट सेरेलो में आपको बहुत अच्छे टेम्पलेट मिलेंगे। एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको 5 या 3 पोस्ट ही आपको मंथली डाउनलोड करने देगा, यही एक ओके डिसएडवांटेज है। ओके। कैनवा तो फ्री है, जितने डाउनलोड करो आप। ठीक है, दोनों के ये अलग मॉडल होंगे मेरे ख्याल से। हाँ कैनवा का तो उसमें है ना कि आप कौन सा लोगे तो उसके ऊपर आपको खरीदना पड़ता है, इसका होगा डाउनलोड के ऊपर। हाँ, ये डाउनलोड के ऊपर है। ये कैनवा में कुछ प्रीमियम फीचर्स हैं जो करने हाँ। पड़ेंगे आपको। ये एनजीओ के लिए बहुत अच्छा, तो ये चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने इन्हें प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं डिस्कस करना हो तो जैसे लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन में आप CSRs के लिए आप एड्स रन कर सकते हो या फिर कनेक्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। CSR जैसे फेसबुक की तरह ही एक इंडिविजुअल प्रोफाइल होता है, दूसरा एक कंपनी पेज होता है। कंपनी पेज में भी आप एनजीओ के लिए अपना कंपनी पेज बना के आप उसमें भी फॉलोअर्स आप बना सकते हो, फॉलोअर्स के लिए इनवाइट्स और बहुत सारे उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप वन बाय वन उसको देख सकते हो। ठीक है, और मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं वन बाय वन मैं आपको अभी तो नहीं कर पाऊंगा, इट्स ऑलरेडी टाइम। मेरा बस एजेंडा इतना था कि मैं फेसबुक के बारे में जितना हम लोग करते हैं उतना आपको मैं समझा दूं। इफ़ एवरीवन आर ओके विद दिस, विल सून, वेरी सून, अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, जितना आप लोगों ने वेबिनार में कुछ ना कुछ अगर आपने पता चले, नई चीज़ आपको अगर पता चली हो थोड़ा सा भी,
तो मैं very soon I'll arrange a digital marketing course only for NGOs in which we'll learn lots and lots of things about this. And yes, free of cost, no charging, because we are the change makers. We learn from each other, and if we are growing, yes, we will bring lots of change in our country. Sure. Yes, Wish you I'm all ready. the luck. I'm also. I'm also ready. Very good thinking. Best luck. Ji. Okay, sir. If each one of you can share your feedbacks about NGO, so then we can wind up 1 or 2 lines from your end. It's a great session. Thank you. ये मेरे तरफ से. And in fact, if you can send us the WhatsApp or something like that, उसमें भी group बना सकते हो जहाँ पर you can share this free tools. Sure. It will be great. Thank you. Thank you so for putting much, up the show. Gagan. Pleasure. बहुत अच्छा था अच्छा सेमिनार, अच्छा था। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि बाकी के लोगों को भी लेके ज्वाइन करें। Thank you for joining, Akshay. Made my day. Yeah. जी लक्ष्मण सर. बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। मैं एज ए IT इंचार्ज हमारे एनजीओज में मैं ये सारा चीजें मैनेज करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी दिक्कत आती है। मुझे जो वाला अच्छा लगा कि एक साथ में अगर मैं सबसे ये नई चीज सीखने की मिली। कैनवा पे हम लोग यूज करते हैं, कोरल में भी हम लोग काम करते हैं, पर बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली। हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के सेशन और भी रहें, और क्योंकि हम लोग भी संडे को ही फ्री रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा एक सेशन हो जाए। और हमेशा सभी लोग, और मेरी टीम में कुछ लोग और हैं, मैं उनको भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप सभी के लिए अच्छा रहे। थैंक यू। हैप्पी सर लक्ष्मण सर. Thank you so much. और गगन Thank you very सर much. से भी Thank बहुत you, नॉलेज sir. मिला। गगन सर के लिए भी थैंक यू। Oh, हाँ, गगन most Thank welcome. you. गगन सर के लिए भी thank you। हाँ, बिल्कुल Welcome. बिल्कुल। Welcome. बहुत अच्छा प्रियेश, है। did you आपको कैसा लगा वेबिनार? सर बहुत कुछ नया सीखने को मिला मेरे को भी सेमिनार में, जी और अच्छा लगा जो जो आप बताए। गगन सर भी बहुत कुछ बताए, नई नई चीजें। जी. थैंक यू सर। देखिए हम लोग चेंज मेकर्स हैं, एक दूसरे से सीख के अगर हम लोग ग्रो होंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा और बहुत सारे चेंजेस आएंगे, एंड दिस इज द एक्चुअल ग्रोथ आई बिलीव. यस सर। नहीं, मेरे को लगता है सबसे बड़ा एक जो चीज अगर हम लोग एक साथ खड़े हों तो एक कंधा मिलता है कि अच्छा इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए. सही है. कई बार वही Yes, जिंदगी sir. में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कर तो देंगे बट कोई किसी से बात करके अच्छा इसको, जैसे आपने भी कहा कि मेरे को भी मालूम नहीं था ये क्रेलो जी कि आप क्रेलो में कर लो. जी तो कई बार होता है कि चलो मतलब वो होता है ना, सबकी प्रॉब्लम है, उसका वो दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है. आई थिंक दैट इज वेरी गुड. सही. I think you should look at building community on a WhatsApp group. यस वेरी वेरी. आरती मैम आपको कैसा लगा सेशन? Yeah, it's a nice webinar, and I am very happy to be a part of this great program. Thank you. Initially, there was some problem, so I could not speak. Okay. So sorry for that. No problem. Okay, thank you so much everyone once again for joining. It was very engaging session with everyone, and soon we'll connect again. Very soon I'll plan for the different webinars, and also if possible the digital marketing course. As I mentioned, we'll learn from Yes, each sir. other. We'll grow together. Yeah. यस सर। Yes. Thank you Thank guys. you so much. Bye. थैंक यू सर। बाय। ओके ओके।